First of all, a very good evening to all of you and welcome once again. Second thing, we are starting a new chapter today and that is light. So I would be introducing some basic terms in light today. I hope you have the hard copies and you would go and do your homework. You could go again and yes, Arpit, your response is sort of missing. I would love to have more response from you specifically in today's class. All right. Arpit, can you give me a one in the chat box very quickly so that we can proceed? Okay, I've got an Namesh, I've got an Arshia. Okay, thank you, Arpit. So let us do some revision questions just to warm ourselves up. And these are the warm up questions. Okay, I would like to give three or maybe I think two questions, right? Three questions. Three questions. Maybe I'll take up the as the coin quiz so that you guys already knew the answers. You have already studied this. You can sort of answer these easily. So this is the first question. Bathing outdoors should be avoided during thunderstorm. बाहर अगर लाइटनिंग और थंडर हो रहा है तो घर में मत नहाओ या बाहर मत नहाओ. ठीक है. Is it a true statement or is it a false statement? Here you go. Coin quiz. Oh, some people answered it incorrectly. Huh? Krishna and Prathamesh, beta, why are you doing this? आप लोग ने गलत क्यों बताया? आपको पता है बाहर अगर थंडर और लाइटनिंग हो रही है, बाहर नहा रहे होगे, लाइटनिंग आके खोपड़िया पे गिरेगी और तुरंत ऐसे यूं गायब हो जाओगे. यू वॉन्ट ऐसा भी नहीं कि आपकी बॉडी में लेगी, वो इतनी सारी एनर्जी आती है लाइटनिंग अगर पड़ी तो यू वर देयर एंड यू आर गॉन. क्योंकि वो हड्डी वड्डी सबको ऐश मतलब सब खत्म कर देती है. जस्ट ईट्स एवरीथिंग अप. ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि ये गायब कहां हुआ. ठीक है. एनीवेज, अब द लास्ट रिस्पॉन्स अवेटिंग. कैन यू क्विकली गिव मी द रिस्पॉन्स? आई थिंक Arpit, you are the one that is sort of not given the response. Can you quickly do that? Very quickly. I'll give you 5 seconds. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, and go. Okay. I would have expected more from you, but it's okay. This is a true statement that you should probably avoid whenever it is, there's thunderstorm outside, that you should not take a bath. Okay. Another question. The process of electric discharge cannot occur between cloud and earth. I think we did this on the last time that lightning can take place in two cases. That is cloud to earth and cloud to cloud. Right. So this is the hint that I've given to you. I hope you can answer it correctly now. Opening this as a coin quiz. Krishna, don't misclick it this time in 3, 2, 1, and go. Okay, this time around, yes, Shri, you've gotten it incorrect. So the process of electric discharge, I think I told you that electric discharge is something that we also call as lightning. Okay. So Arpit, you are not answering. So I will proceed with this question in 3, 2, 1, and go. All right. तो भाई देखो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग ऐसा बोल रहा है कैन नॉट अकर बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ. भाई क्लाउड एंड अर्थ भी करती है, क्लाउड एंड क्लाउड भी करती है. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट. बी पार्ट ठीक है ना. आगे बढ़े. वन दबाओ, जल्दी से वन दबाओ यार. व्हाट आर यू डूइंग यार. अच्छा चलो कॉइन्स कॉइन्स तो भूल ही गए. लो कॉइन्स ले लो पहले. कॉइन्स ले लो गाइस. गेट द कॉइन्स. ऑल राइट. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर वी गो ऑन टू द टॉपिक इटसेल्फ. हाँ कहाँ गया. लो ये बताओ. ऑल राइट. So guys, here's the question for you. The question says, the plates of the outermost layer of Earth are always in continuous motion, right?
बाहर की जो अर्थ की प्लेट होती हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन में होती हैं. फॉर दिस आई विल गिव यू द हिंट. द हिंट इज दैट everything is in motion. I said that if you talk about universe, everything is in motion. So this was the hint I gave you this last time around as well. This is a final coin quiz for the revision questions, opening in 3, 2, 1 and go. इसके बाद there are two more coin questions and normal questions I would be doing. So let's hope that I hope that all of you, I mean, out of the 18 students that are watching, we have we have 11 students who have picked up all the coins till now, right? So 3 question wale we have 11 people, 2 question correct we have 3 people, and 1 question correct we have 3 people again. Okay, chalo. In fact, 1 question, 3 question correct wale we have 12 people now. Great, chalo. 100% लोगों ने सही बताया. Everything is in motion, तो भाई ये भी motion में ही होगा, right? So this is great. I'm moving forward, right? So now let us have the agenda for today. आज का एजेंडा क्या है? बिहार के चुनाव? No, not Bihar election. Okay, IPL is also done. Mumbai won. Okay, class 1 Mumbai. Let's come on to studies now, right? We don't even have IPL to go to now. Anyways, the agenda is that we want to do 4 things today. All right. Now I'm pretty sure that we can cover first, second, and third. Fourth wala, if we can, very good. If we cannot, the next class is there, right? So what are the things that we are doing? First thing, we will know what is light, right? Basic definition, you think that you know, but you don't know, because there are a lot of intricate things that are again being feeded to you in higher grades. So I will get you the some of the facts from there, and let's hope you can understand what is light on a much elaborate level. Okay. Next thing, second thing, we will go about and do about things with mirrors. Okay. Mirrors are something that you must have heard of in class 7th, that they are plane mirrors, they are curved mirrors, right? We will talk about it on a very basic level again. This would be class 8th level once again. And finally, we'll be covering, reflection. This is the most important part. This is going to be the most important part in today's class. Maybe we won't be able to cover this up. If we can, we'll move on to image formation. We'll take it then and there. Otherwise, are you ready to start this first topic? Give me a one that yes, sir, we are ready. Right. So people know convex. They know a little summary of this chapter. It's a good thing to have. But yes, what is even better to have? To know more about light. So light, you say, like, what is the first thing that I get? Somebody told me that, sir, light means form of energy. That is absolutely correct. There's no, no saying that this is a wrong thing. Like this is an absolutely correct statement. But having said that this is an absolutely correct statement, I would also add the fact that it is a very basic fact, right? It is a very basic definition that I think almost all of you will probably tell. If I ask 100 students, 100 classes students, I ask, what is light? They immediately say, so this is a form of energy. At least 80 of them would say this, right? So this is a form of energy. Very good. You need to hold on to this fact, and you can add that form of energy which makes things visible, right? If I say that, if I say what is sound, you will again say, sir, it is a form of energy, right? So sound and light, are they the same thing? Because both of them are forms of energy. Now, differently you are feeling this energy, right? If you talk about sound, you feel the energy through ears. If you talk about light, you feel the energy through eyes. So it is that sort of energy which gives a sensation to eye, you can say, right? Yeah, something that makes things visible to us. Okay, so this is the first basic definition. Is it okay? Is this first definition part okay? Can I get a one that yes, sir? This we have understood, that form of energy which makes things visible. So now this is again very obvious, right? If there is food, you won't be hungry, right? If there is food, you won't be hungry. But if there is no food, you are hungry, right? If there is no food, you'll feel hunger. You'll feel like I need something to eat. So absence of food means hunger, right? So absence of light means darkness. Is this point also clear? I mean, both of them are related. Can you say that, okay, sir, first and second is absolutely relatable?
You can say that if you want to say that let there be light, then you can also say let there be absence of light, let there be darkness. Okay, it's just the opposite antonym of each other, like good, bad, right? Happy, sad, something like that. Okay. ओके अभी तक सब कुछ क्लियर है, किसी को भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो टू दबा देना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर हु इज जॉन स्नो, अरे ये सब बकवास नहीं करो, अभी जॉन स्नो बाद में करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, राइट? दिस लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट एक्रोनिम वी यूज फॉर दिस 7 कलर्स? आई थिंक एवरीबडी वुड नो दिस, प्रोबेबली एवरीबडी, राइट? स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको हम, विबग्योर, राइट? इसमें बोलते हैं कि हमारे पास कुछ ये कलर्स हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि देयर आर बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, एंड इफ यू वांट टू ऐड अ लिटिल फर्दर, इफ लेट अस से यू वांटेड टू, जस्ट इन केस यू वांटेड टू, यू कैन से, हाँ उमेजा यू हैव ऑलरेडी सीन द स्माइली, तो इसमें 3 प्राइमरी कलर्स भी होते हैं जिसको हम RGB कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, राइट? डज एवरीबडी says Roger that to this first, second and third part ki yes sir this is done? अरे ये विब गायार नहीं है भाई अरविंद, विब गायार is like okay, all right, okay, great. So finally this is the fourth point which not a lot of people would know, right? And this is where you will sort of get bamboozled. I'll take a whiteboard and I'll explain it to you very quickly. What normally a class 8 student understands is light का मतलब उनके लिए light is equal to visible light, ठीक है। अब आप कहोगे सर visible light, what is the difference? I'll tell you the difference. They feel light means VIBGYOR and that is done. Okay. In actual sense, if you want to say the full light spectrum, right? Light को हम actually अगर हम थोड़ा सा next level जाते हैं, right? We are going in upper grades now, ठीक है। तो I will just give you an idea that actually light you will call in upper grades that this is basically an electromagnetic wave, ठीक है। इसी को लोग आगे चल के EM waves कहते हैं। If you have your cousin or your brother, elder sister, somebody who is in upper grades, you tell them that light is an electromagnetic wave and वो कहेंगे हाँ क्लास 8 में you heard about electromagnetic wave, तो उन्हें बताना कि हाँ हमारे उदित सर उन्होंने थोड़ा सा हमें बताया था। तो I'll give you more idea about this, that what exactly a normal class 8 student knows and how you would be knowing it better. That this electromagnetic wave जो होती है कई सारे तरीके की होती है। ये कितने तरीके की होती है? ये होती है G, X, U, WIM, R, ठीक है। G for gamma rays, ठीक है। X is for X rays, ठीक है। U is for ultraviolet rays, ठीक है। V is for visible light, the one that you actually know. तो क्लास 8th में आपको केवल इसके बारे में बताते ही हैं। They don't tell you that there is such a huge spectrum of light, पूरा electromagnetic wave, if you say all of this is light. अब आपकी आंखें इतनी मतलब खराब होती हैं कि they can only see this visible light, they cannot see anything else. They cannot see infrared, they cannot see microwaves, they cannot see gamma waves, they cannot see X-rays. अब आपको पता है, you already know कि X-ray जब हड्डी टूटती है, once you get your leg broken or hand broken, you go to get the X-ray done, right? You have heard about it. It's again a type of light, it's again a type of electromagnetic wave, but you never related it to your visible light, right? So now you can relate. Similarly, I say we have infrared wave, M say we have microwave, right? And R say we have radio wave. So now you know this as an extra thing. You can remember this acronym GXU WIM R. This is all the electromagnetic wave. Maybe you can tell your elder brother or sister as well about this and you would be done. Is it okay? Can I get a one that yes sir we have understood about this? कि ये एक जो मैंने बोला ना कि ये EM radiation है. EM का मतलब है electromagnetic. So you can now you have a lot of definitions for light. If I ask you as a 3-mark question, define light. Now earlier on you could only say that sir light is a form of energy. Now you can say sir light is a form of energy. It can help us see things and it is a sort of electromagnetic wave. आगे आप बोल सकते हो इसकी स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज जनरली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन एयर. ओके चलो ये तो 1 1 1 1 1 1 है. तो अपन करते हैं क्वेश्चन. करें क्विज चालू करें, वन दबाओ क्विज करना है तो
भाई क्विज करना तो 1 दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है? you'll have to write down 1 if you want to do the quiz. Okay, चलो आओ, let's do the quiz then. Simple questions coming up, right? But please don't answer it in the chat box. So this I'm going to open up as a coin quiz because I believe कि ये सब कोई सही कर सकता है. I hope I get 100% correct response. Opening the ballot in 3, 2, 1 and boom, boom, boomra. एक लोग का रिस्पॉन्स बचा है भाई. So I think that almost all of you have done so. Let me close this ballot on the count of 5, 4, 3. Okay, आ गया मेरे पास. A part, that is incorrect. What makes things visible? Somebody answered this as might, which is mighty wrong. It is light. Okay, इससे easy मतलब कुछ हो नहीं सकता था. But again, I think you just entered into the class and you got it incorrect. No problems. Which part of electromagnetic spectrum कैन वी सी? कौन सा वो पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो हम देख पाते हैं, आईज कैन सी? इज इट गामा रेज, इट इज एक्स रेज, इज इट विजिबल लाइट और इज इट रेडियो वेव्स? राइट, लाइट इज लाइट ही करेक्ट. ओके, तो अगेन आई एम ओपनिंग दिस एज अ कॉइन क्विज इन 3, 2, 1 एंड गो. तो भाई जल्दी से आंसर क्रू. इसके बाद हमारे पास कोई कॉइन क्विज नहीं, कॉइन में बीच बीच में बांटता रहूंगा. इनफैक्ट इस क्विज के बाद आई विल गिव यू द कॉइन्स वंस एंड फिर 2 सेट और बचेंगे, वो हम धीमे धीमे कर लेंगे. एवरीबॉडी प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द क्लास. आज की क्लास हमारी चलेगी पूरी 45 मिनट्स, ठीक है? एंड में जैसी घंटी बजेगी मैं वहीं पर रुक जाऊंगा एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू डोंट जस्ट गो कि 40 मिनट हो गए, चलो अब तो क्या ही सुनेंगे सर, तो अब बकवास करने वाले नहीं. ऐसा नहीं, आज सर बकवास नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स क्लोज दिस बैलेट on the count of, we have 4 people who are remaining. मैंने बोला था कि कुछ पार्ट होता है जो हम देख पाते हैं, some part is visible to us. लाइट का कौन सा पार्ट होता है जो विजिबल होता है, ये बस आपको आंसर करना है. Which part of light is visible to you? Which part of electromagnetic spectrum can you see? Let's close this ballot on the count of 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. ओ गलती कर दिया आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने, 81% लोगों ने. ये विजिबल लाइट ना, मैंने बताया था ना, GXU विम आर, तो इसमें केवल ये वाला हमारी आईज देख पाती हैं, है ना? यही वाला हमारी आईज देख पाती हैं क्योंकि V फॉर विजिबल लाइट. विजिबल यानी जो हमें दिख जाए, बाकी सब हमें नहीं दिखता है, बाकी सब इनविजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है. इज इट ओके? कैन आई गेट अ वन दैट यस सर? हाँ, इट्स नॉट अ ग्रेट आईज, ऐसा टाइप का आईज बना है, ठीक है? ओके, somebody out. अभिषेक क्विकली, गलती से दबाए थे. ओके, चलो कोई बात नहीं. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अभी ये तो हमने कर लिया है. सेकेंड पार्ट पे कमिंग अप एंड पहले कॉइन्स ले लो भाई. ओके, जिन लोग अभी नहीं पहुंच पाए मास्टर कैटेगरी में, जैसे अरविंद हुए, जैसे यश्री हुई, जैसे हसनी हुई, राइट? तो आप लोग, जैसे भरत हुए, राइट? तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, अभी पहुंच जाओगे. अभी इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे मिरर्स के, तो पहुंच जाना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं. मिरर्स में व्हाट एग्जैक्टली इज अ मिरर? ठीक है, मिरर आप कहते हो वो चीज है जिसमें आप रिफ्लेक्शन देख सको अपना, है ना? नाउ रिफ्लेक्शन इज अ बिग वर्ड. आई थिंक REFLECTION 10 लेटर का वर्ड है, राइट? इतना बड़ा वर्ड तो हमें जनरली दिमाग में जाता ही नहीं है. तो एनीवेज, एनीथिंग दैट इज वेरी शाइनी. जैसे कभी कभी तो हम, क्या होता है कि प्लेट कोई नई नई खरीद के लाओ, स्टील प्लेट, उसमें ऐसे देखो तो अपनी चेहरा दिख जाता है, राइट? समटाइम्स इट हैपेंस कि देयर आर दोस ग्लासेस जिसमें अंदर वाले लोग बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग केवल अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, अपनी इमेज देख पाते हैं. तो एनीथिंग दैट इज शाइनी इन नेचर, एनी सरफेस दैट अपीयर शाइनी, समटाइम्स इन वाटर एज वेल, यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन. आई थिंक यू वुड हैव स्टडीड दिस पंचतंत्र फेबल, कि there was this lion who went to this pond, and once he saw his reflection he thought there is another lion. I think it was in the well, and he fell in the well and he died, right? So all the forest janta was happy कि हाँ, सब deer is happy, elephant is happy, rhinoceros is happy, zebra is happy, giraffe is happy, everybody is happy. Have you heard about this? Can you give me a one that yes sir, I've heard about this fable?
So over there, you saw the first time that this is sort of a mirror, but you never learned about it in terms of physics. So you have always been seeing things. That is what I keep on repeating. That if you are studying physics, it's basically a very interesting subject because all the things you have already seen, but you never related to it. So I'll just try to relate it over here. Right? Dog and roti wali story. Exactly. Yes. Okay. आलो कोई बात नहीं कॉइन्स आई थिंक जीरो मिले अगली बार में ले लेना ठीक है इट्स ओके तो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट दिस इज अ शाइनी सरफेस ओके नाउ व्हाट डज इट डू व्हाट इज इट्स पर्पस राइट इट्स पर्पस इज that it changes the direction of light right so sometimes we can call this as reflect as well I mean changes the direction means reflects light okay either you say changes the direction of light right changes the direction of light either you call this or you simply say reflects light see it is easy to say now only two words required mirror reflects light right mirror changes the direction of light and if you want to just elaborate it you can say in these terms okay is it okay can I get affirmation on the second point as well that yes sir this is a very easy thing I mean this is something we already know this we have studied in class 7 no point in telling all of this video is lacking I think बाकी लोगों के लिए video is coming fine is video and audio fine can you give me a one that yes sir video audio is fine everything is okay जिनके लिए नहीं है वो लोग 2 दबाएं okay it is fine okay cool so I think mostly people are fine with this all right let's go on to the third part this is the most important part all right तीसरा part सबसे important है it can be plain or curved what do you mean by plain or curved so this was the first time that I went in a science fair not really a science fair I went into a what do you say water park right I went into a water park an amusement park I would say तो वहां पे वो वाटर स्लाइड्स होती हैं राइट ऊपर से गए नीचे शू करके आए वो होता है फिर वो होता है एक जिसमें बैठ जाओ तो गोल 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 घुमाता है राइट दैट इज सर्कुलर मोशन बेसिकली टेकिंग प्लेस सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है विल स्टडी दैट सम टाइम अगेन इन फोर्स एंड प्रेशर ओके in that amusement park there was one place what was that one place ki I went in front of a mirror and my muh became this big right I think there are insta filters in your Instagram which make your eyes go this big right eyes becomes this big right something like that happens sometimes you become very small pichak jate ho ekdam se right have you seen that right I mean I don't know like you are this much if you are you saw into a mirror and you found yourself that you are just this much or maybe your face becomes this much and this is like this right I think that you must have seen this so all of these places where you become small or your face becomes big this is where you have curved mirrors okay this is where you say that you are actually looking into a curved mirror okay so curved mirror क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं you can remember this that one is called concave and one is called convex ठीक है ये दो तरीके के मिरर होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स अब मिरर में कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है इतना तो आपको जानने की जरूरत नहीं है बट हाँ प्लेन मिरर और कर्व मिरर में मैं डिफरेंस दिखा देता हूं ऑन अ व्हाइट बोर्ड तो प्लीज पे डबल अटेंशन नाउ ओके नाउ लेट अस से दिस इज अ मिरर तो दिस इज नॉट अ मिरर दिस इज नॉट अ मिरर ऐसे नहीं होता है मिरर मिरर के लिए हमें चाहिए होती है एक साइड जिसे हम पोत दें सिल्वर कर दें राइट वन साइड वी पेंट इट सिल्वर तो हम कोई भी साइड कर सकते हैं आई कैन डू इट एनी साइड इफ आई वांट लेट अस से दैट इफ दीज टू आर प्लेन मिरर्स हाउ कैन दे बी डिफरेंट राइट नाउ दे आर नॉट डिफरेंट बट इफ आई पेंट द अपर साइड this is a different mirror and if I paint the lower side this is different this is what we call as silvered side okay this is what we'll call as silvered side मतलब जिस साइड आपने पेंट कर दिया अब क्या है अब पॉइंट ये है कि लाइट रे कैन नॉट कम हियर ऐसे नहीं आएगी यूं नहीं आती है इसमें यहां से आ सकती है नीचे से एंड सिमिलरली इस ऊपर वाले में यहां से नहीं आ सकती दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट टेक प्लेस ओनली ऊपर से यूं आ सकती है इज इट ओके कैन आई गेट अ वन दैट यस सर वी आर अंडरस्टैंडिंग सिल्वर्ड साइड नाउ आई वुड लाइक टू गो अबाउट एंड टेल यू मोर अबाउट दिस ओके तो वन थिंग यू हैव अंडरस्टूड दैट इसमें लाइट रे यहां से आ सकती है दिस इज एक्सेप्टेबल एंड यहां से लाइट रे आना दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इसमें यहां से आना इज एक्सेप्टेबल इसमें यहां से आना इज नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है तो फर्स्ट थिंग दैट यू
आस्क कि सर एक चीज ना आपने कुछ अजीब सी करी है। मैंने क्या करा है अजीब सा? आई हैव ड्रॉन दिस एरो। दिस एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस वी आई टेल यू जब हम रिफ्लेक्शन, अभी अगला पार्ट रिफ्लेक्शन है ना, आई टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इज इट इन दैट रिफ्लेक्शन वाली स्लाइड। बट फॉर नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि भाई ऐसा नहीं होता है। आसर ने बोला कि भाई सिल्वर्ड साइड, अगर यहां सिल्वर करा है तो नीचे से रे नहीं आएगी, ऊपर से ही आ सकती है। अगर ऊपर सिल्वर किया तो यूं रे नहीं आएगी, नीचे से ही आ सकती है। ऐसा क्यों? से दैट दिस वाज यू, लेट अस से दैट दिस वाज यू। आप सुबह सुबह तैयार हुए स्कूल जाने के लिए, राइट? तो आप जाते हो तो एकदम बढ़िया से ऐसे यूं यूं बाल यूं करते हो, यूं करते हो, यूं करते हो, यूं करते हो, अपनी शक्ल देखते हो, स्मार्ट लग रहा हूं। ठीक है, अब चलो स्कूल चलते हैं। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली वर यू डूइंग? आपके घर में यहां पे मान लो मिरर रहा होगा, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मिरर के जस्ट पीछे दीवार होती है, इस मिरर के जस्ट पीछे वॉल होती है ना? ये तो इतना क्या सब कोई मानेगा कि हाँ सर ऐसे ही होता है हमारे घर में। ऐसा नहीं है कि बीच में हवा में टांग दिया है। ठीक है, जनरली मिरर पीछे दीवार रहती है। तो ये वाला साइड आपका सिल्वर्ड होता है। आप इधर से लाइट रे आती है और इधर यूं जाती है, इसी साइड खेल रही होती है, वन साइड इट इज प्लेइंग। ऐसा नहीं कि पीछे से आप यहां से दूसरे रूम में चले गए और दीवार के आर पार मिरर में देख लिया। दैट डज नॉट हैपन। ठीक है, अगर ऐसा हम कहते हैं, अगर इफ आई डू दिस, कि इसमें मैं पीछे दीवार नहीं रखूं और आप इधर से देखो, अगर ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो, अगर ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो, जैसे मान लो कि आप सिंपली एक जो चीज लेते हो ये, जिसमें आप दूसरी साइड देख सकते हो, जैसे मान लो एक स्केल लेते हो। ठीक है, एक स्केल लेते हो, तो स्केल से आप इस साइड से दूसरी साइड का भी देख लेते हो, राइट? यू कैन सी द ऑपोजिट साइड। यहां पे मान लो आपका ये फ्रेंड था और आप यहां थे और ये केवल ग्लास था, तो इसमें तो आप देख लेते हो दिस इज नॉट अ मिरर, इसमें सिल्वर्ड नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ मिरर, दिस इज जस्ट अ ग्लास स्लैब। तो देर इज अ डिफरेंट बिटवीन ग्लास स्लैब एंड मिरर, और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस होता है सिल्वर्ड साइड। तो अब क्या आपको ग्लास स्लैब और मिरर में डिफरेंस बता लोगे? इज इट ओके? जैसे ये जो है ना, दिस थिंग, दिस चश्मे में, इसमें मैं आर पार दोनों साइड देख लेता हूं, दिस इज अ ग्लास स्लैब। अगर मैं इसमें ही इस साइड पूरा सिल्वर पेंट कर दूं तो मैं यूं अगर देखूं तो मैं अपनी शक्ल देख लेता हूं। दैट इज वो। ठीक है, आई होप इट इज ओके, राइट? तो ये तो प्लेन मिरर की बात हुई। तो सिमिलरली आई वुड टेल यू कि इसमें और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। आपने जान तो लिया ही है कि कॉनकेव, अगर कर्व्ड मिरर की बात करें तो दिस इज ईदर कॉनकेव और इट इज कॉन्वेक्स, राइट? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में यूं एक कर्व बना दो पहले तो, क्योंकि कर्व्ड तो दोनों ही है। अब बस दोनों में अंतर ये होता है सिल्वर्ड साइड ऑपोजिट होती है। कॉनकेव के लिए बाहर पेट की साइड, ये पेट जो फुला लिया ना, ऐसे पेट बाहर से पेंट कर दो अगर, तो ये कॉनकेव होता है। और इसमें अगर अंदर से पेंट कर दो तो ये कॉन्वेक्स होता है। तो दिस इज जस्ट कन्वेंशन दैट पीपल डू। तो इज इट ओके? कैन आई गेट अ वन दैट यस सर दिस इज डन, राइट? ये मतलब मिरर वाला पार्ट इज ओवर, तो वी कैन गो एंड डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, couple of questions again. Simple questions coming right up. A plain or shiny curved surface is called what? Light, reflection, lens या mirror? Opening the ballot in 3 2 1 and go. Three people left, two people left, one person left. All right, done. Great. D part is absolutely correct. That we can say that this is what we call as a mirror. प्लेन और शाइनी कर्व सरफेस को हम मिरर कहते हैं। ये ओके है क्या? कैन आई गेट अ वन दैट यस सर इट इज डन? इसमें मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। व्हाट? प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, बोथ एंड बी, या नन ऑफ दीज? हियर यू गो। अलग से, अलग से अभी लाइक 4-5 मिनट पहले मैंने एक स्लाइड ली थी व्हाइट बोर्ड, जिसमें मैंने समझाया था कि बच्चों ऐसे ऐसे होता है। स्टिल 25% पीपल आर इनकरेक्ट। लो 30 हो गए वो। 4 लोग बचे हैं भाई। कैन यू गाइज आंसर मी अ लिटिल क्विकली?
3 more people left. क्विकली गाइस, अभी तो हम रिफ्लेक्शन पे भी नहीं आए, हमारे पास 10-12 मिनट ही बचे हैं, ज्यादा नहीं बचा है। तो हमें लग रहा है रिफ्लेक्शन भी हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट टर्न पे। चलो कोई बात नहीं, 2 लोग बचे हैं। क्लोजिंग दिस बैलेट ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। ओके चलो, 75% लोगों ने मुझे बता दिया सही, थैंक यू। अभी बोला था मैंने, आओ दिखाते हैं, एक स्लाइड मैंने बताई थी, ये रहा। कर्व्ड के केस में होता है कॉन, कॉन के साथ आता है या तो केव या तो आता है वेक्स। तो कर्व्ड मिरर में ही तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आएगा, प्लेन में नहीं आएगा। सब आ रहा है समझ में कि नहीं भाई? अभी 1 दबा दो कि हाँ सर इट इज ओके, नहीं तो 2 दबा दो कि नहीं सर बात करनी, क्योंकि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स देयर इज नो पॉइंट एक्सप्लेनिंग रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। आई थिंक अब सब लोग मास्टर चैलेंजर में तो आ ही गए, ठीक है, अच्छी बात है। भरत, आई थिंक यू जॉइंड द क्लास लेट, तो बेटा ऐसा मत किया करो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो रिफ्लेक्शन पे आते हैं फाइनली, एंड रिफ्लेक्शन करने से पहले कॉइन्स ले लो। लो, हियर यू टेक द कॉइन्स एंड देन विल स्टार्ट रिफ्लेक्शन। whatever we can complete will complete today। बाकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप खुद से इसे पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, तो हम इधर से ही चालू करेंगे, ठीक है। अच्छा, there are a lot of points that are given। I would like to start with the first point, right? That is कि there are some 2 laws of reflection। कितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं? 1, 2, 3, 4, कितने? 2। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई आपसे कहे 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, उसे झापड़ मार देना, कहना हटो तुम, चलो निकले यहां से, गलत सलत मत बातें किया करो मुझसे, ठीक है। अच्छा, आपको अगर ये समझ में आ गया कि 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आपसे फिर कोई ये भी पूछेगा कि टेल मी व्हाट आर दीज, व्हाट एग्जैक्टली डू दे टेल। तो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि कैसे इसको आप बताते हो, ठीक है। लेट अस से वी हैड अ मिरर, लेट अस से वी हैड अ मिरर। इस मिरर को मैंने नीचे सिल्वर कर दिया, एंड सिंस प्लेन मिरर इज ओनली इन योर कोर्स करिकुलम, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आर नॉट देयर, आई जस्ट टोल्ड यू लाइक दिस, मन था मेरा बता दिया, जाओ जो करना कर लो, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू टेल इसमें कैसे रिफ्लेक्शन के लॉज आते हैं, तो आप क्या कहते हो कि मिरर है तो लाइट होगी, है ना, लेट देयर बी लाइट, एंड जीसस सेड लेट देयर बी लाइट। तो हियर द लाइट केम, लाइट आई इस तरीके से। तो व्हाट डज दिस एरो टेल? दिस एरो टेल्स कि दिस इज अ रे दैट विल फॉल ऑन मिरर, ठीक है, मिरर पे जाके गिरेगी। जो भेजी थी रे, वो जाके मिरर पे टकरा गई है इस तरह कि लौट के आएगी, ठीक है, इट विल कम, इट विल कम। अब इस रे की बात करते हैं, तो इस रे को, जो ये एरो है ना, दिस एरो कैन टेल अस दैट दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो जाके हिट करती है। अगर मैं कहता हूं एक बॉलर ने बॉलिंग कराई, तो जब वो बॉल कराता है और बॉल उसके हाथ से छूट के, टिल द टाइम द बॉल इज कमिंग फ्रॉम द हैंड, टिप्पा खाती है जमीन पर और बैट तक पहुंचती है, दिस इज द इंसिडेंट बॉल, द बॉल दैट केम टूवर्ड्स द बैट। जब बैट्समैन ने घुमा के छक्का मारा, जब बैट्समैन ने घुमा के छक्का मारा, तो बॉल गई आसमान को छूने, राइट, वो गई दूसरी साइड चली गई उड़ के, तो वो रिफ्लेक्ट होके बैट से गई। एंड ये जो रिफ्लेक्ट होके गई, द रे दैट कम्स फ्रॉम मिरर, एक थी दैट वाज हिटिंग ऑन मिरर, और एक थी जो आ रही है फ्रॉम मिरर। तो ये आई होप आपको दिख रहा होगा कि एक ये फ्रॉम मिरर है और एक ये ऑन मिरर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दिस वुड बी कॉल योर रिफ्लेक्टेड रे। इज इट ओके? कैन यू अंडरस्टैंड कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या है? 1 दबा दो कि हाँ सर वी हैव अंडरस्टूड कि ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट क्या है, ठीक है। ओके अरविंद, यू कैन टेक द माइक इफ यू आर ओके, यार ओके, कूल। है कुछ डाउट? नहीं, No doubt, sir. By mistake, it was, sir. ओके cool, नो प्रॉब्लम। तो नाउ यू सेड कि ओके रिफ्लेक्शन तो हो गया, रिफ्लेक्शन तो हो गया,
लेकिन लॉस तो हमें इतने इतने पता चले, अभी तो लॉ कोई पता ही नहीं चला। तो अब मैं लॉ बता देता हूं। लॉ के लिए एक और चीज चाहिए होती है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड तो आई होप आप समझ गए, बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। इंसिडेंट था, आपने रिपोर्ट कार्ड दिखाया पापा को, पापा ने देखा फेल होगा, झापड़ मारा, वो रिफ्लेक्शन था, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। या पता नहीं 100 में 100 आए थे तो पापा ने शाबाशी दी, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करते रहो, समथिंग लाइक दैट। तो नाउ द थिंग इज कि आपको एक और चीज चाहिए, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल करने के लिए चीजें हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल क्या भला है? नॉर्मल होती है इमेजिनरी लाइन। ये होती है इमेजिनरी मतलब मनगढ़ंत। इमेजिनरी मतलब मनगढ़ंत, मन में ऐसे है एक लाइन। अब आप कहोगे सर कहां है लाइन? यहां 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 यहां, कौन सी लाइन है? तो जिधर ये जाके दोनों देखो, इंसिडेंट जहां होगी वहीं से निकलेगी। जैसे मान लो मैं बॉल फेंकता हूं, तो बैट पे एक पॉइंट होगा ना जहां से छक्का गया है, वो पॉइंट से इस पॉइंट को पहले पकड़ लो, ठीक है। और मिरर से पूछो, मिरर तुम कैसे हो? मिरर से पूछो, मिरर कह रहा है जी हम तो सीधे हैं, ऐसे ही यूं। तो उससे नॉर्मल का मतलब, और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आप यहां से ऐसी एक लाइन खींच दो, ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए, मिरर को 90 डिग्री पे कट करनी चाहिए। नॉर्मल क्या आपको समझ में आ गया? कैन आई गेट अ वन कि हाँ सर ये लाइन तो समझ गए, है ना? Is it okay? Can I get a one that yes sir we have understood this? So now you are having certain angles which define the first law of reflection. ठीक है? What are those angles? इस एंगल को हम कहते हैं दिस इज एंगल आई। दिस इज एंगल आई। ये कौन सा एंगल है? एंगल आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो होता है उसे हम एंगल आई बोलते हैं। सिमिलरली वी हैव दिस एज एंगल आर। अब एंगल आर कौन सा होगा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इतना क्या सबको क्लियर है कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया है? एंगल आई एंगल आर, और लॉ बस इतना ही है कि भाई ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड तो समझ गए कि अब ये दो एंगल, कौन से एंगल? एक तो ये वाला एंगल है आई और नॉर्मल के बीच का, विच इज एंगल आई, और दूसरा ये जो आर और नॉर्मल के बीच में एंगल आर, दीज आर इक्वल, ठीक है। एक लॉ तो ये होता है। अब लेट अस से कि यू सेड कि सर हमारा जो वो था ना, हमारी जो मिरर था, वो मिरर मान लो ऐसे था, तो इस केस में सर क्या करेंगे? तो इस केस में फिर से देख लो, इंसिडेंट रे मान लो यूं आती है, तो आप इस पॉइंट को पकड़ लो। इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है, तो मैं तो 90 डिग्री थोड़ा सा मुंडी टेढ़ी करूंगा और मैं कह दूंगा कि दिस इज 90 डिग्री, तो मेरी नॉर्मल अब की बार थोड़ी सी टिल्टेड होगी। इज इट ओके? कैन आई गेट अ वन दैट यस सर दिस इज डन? अगर मान लो मेरा मिरर कुछ इस तरीके से होता है, या फिर मान लो इस तरीके से होता है, तो इस केस में नॉर्मल वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? ये 90 डिग्री पे होगी, राइट? ओके, तो आप ये समझ गए हो। तो अब एक और जो लॉ होता है, जो दूसरा लॉ होता है, वो क्या कहता है वो याद कर लेना। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। रट लो, रट लो। अभी इसका मतलब नहीं समझ पाओगे, इसका मतलब समझने की जरूरत भी नहीं। इतना याद कर लो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। इज इट ओके? आर दीज टू लॉस डन एंड डस्टेड? इसको मैं मान लू कि हो गया, तो आपको थोड़े से एक क्विज और करा देता हूं, एक दो क्विज, एक क्विज करा देते हैं। आओ ये क्विज कर लो। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? हियर यू गो। अभी अभी बताया था मैंने, इतने एक मतलब पिछले 5-10 मिनट से चिल्ला रहा हूं, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। टाइम इज ऑलमोस्ट अब, अभी जाना मत, अभी जाना मत, ठीक है। वी वुड हैव डन मोर क्विजेज, अगर हम और पढ़ पाते तो हम, और नहीं पढ़ पाए तो अभी हम और क्विजेज नहीं करेंगे। मे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्विजेज, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में उसको रख लेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। क्विजेज की कमी थोड़ी ना, कितने भी क्विज बना लो, एक एक चीज के 2 साल बन जाते हैं, तो इट्स ओके। आई हैव 2 more responses left. Can I get those very quickly? Closing the ballot in 5, 4, 3, 2, 1 and go. Okay. 85% लोगों ने सही बताया भाई। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंड एक होता है आई रे, आर रे एंड नॉर्मल, दीज ऑल आर इन सेम प्लेन। ओके, ये 2 लॉ थे हमारे। अच्छा जी, अब वापस आते हैं इस पे।
तो आपको मैं बता देता हूं, दिस यू विल हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, प्लीज रीड द मॉड्यूल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट अस से ए इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो बी होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है. इन दोनों में जनरली पीपल थिंक कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉस फॉलो होते हैं, डिफ्यूज में नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है. नाम ही है उसका रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है. ये दोनों रिफ्लेक्शन फॉलो दीज टू लॉज. ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है, योर होमवर्क टू स्टडी इट आउट. ठीक है. लेटरल इन्वर्जन के बारे में भी आप पढ़ लेना, आई थिंक यू वुड हैव स्टडीड. एम्बुलेंस का एक एग्जाम्पल होता है. ठीक है. एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में भी पढ़ के आना. यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ. लेट मी क्विकली समराइज. पहले तो मैं कॉइन्स दे देता हूं, कॉइन्स कलेक्ट कर लो. ठीक है. होमवर्क करके आना सबको ही. ठीक है. जितना मैंने बोला उतना करके आओगे तो अच्छा रहेगा. इट वुड बी ग्रेट फॉर यू एज वेल एज फॉर मी. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे, अभी तो हमने देखा ना रिफ्लेक्शन और इमेजेस छूट गया, तो हम पेरिस्कोप और कलाइडोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे इन मल्टीपल इमेजेस. सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे प्रिज्म और डिस्पर्जन में. हैप्पी दिवाली तो है ही सबको. ठीक है. समरी के तौर पे मैं बता देता हूं आज हम क्या क्या किया. वी कवर्ड अप दीज थिंग्स, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज मिरर्स. ठीक है. इतना हमने कर लिया. दिस ऑल वी वर एबल टू डू. हम रिफ्लेक्शन में केवल कपल ऑफ लॉज कर पाए. ये वाला इतना पार्ट जो है, all of this is sort of your homework. We'll meet back again most probably next week. तो तब हम इसे कवर कर रहे होंगे. अभी के लिए तो भाई हैप्पी दिवाली है पहली चीज, एंड फाइनली है थैंक यू. ठीक है. तो अब मैं लीडर बोर्ड दिखा दे. Okay guys, thank you for watching my video, and if you like my video, like and share, and if you have any doubts also comment me, and don't forget to subscribe my channel for more videos. And one subscriber has asked me to keep the class of light and some natural phenomena, but I couldn't keep that some natural phenomena part because the class is unavailable right now. Within a short time I will be able to give that class, and don't worry guys, I will damn sure I will do it. Okay guys.